A very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts of subject economics. Dear students, in the previous lecture, we have discussed about the privatization, the meaning of privatization, the need of privatization, and the pros and cons, that means merits and demerits of privatization. Along with this, in the previous lecture, dear students, we have discussed about the Navratnas, Mini Ratnas and Maharatnas of the public sector undertaking. Dear student, today we are going to proceed in the chapter with the concept of globalization. Today is the 18th lecture, and in this lecture we are going to discuss about the globalization and its different concepts. So dear student, the very first question must arise in your mind that what is the meaning of globalization? Although in the previous classes also you have heard about the concept globalization. So, dear students, globalization means integrating the economy of a country with the economies of other countries under the conditions of free flow of trade and capital across the borders. If we talk about globalization, तो globalization concept क्या है बेटा? Integrating of the domestic economy with the economy of rest of the world. अपनी इंडिविजुअल एक डोमेस्टिक इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी से क्या करना, इंटीग्रेट करना, ज्वाइन करना. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. See further, at the international level, it is a process of bringing the world economy economically and socially closer to each other. वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमीज अवेलेबल हैं उनको सोशली और इकोनॉमिकली क्लोजर लाने के प्रोसेस को हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं. See further, as a result, there will be unrestricted flow of goods and services. Globalization का result क्या होगा? There will be unrestricted flow of goods and services. Technology and expertise between the India and rest of the world. क्या होगा? Unrestricted, that means without restriction goods and services का flow होगा. Technology and expertise का flow होगा किसके बीच में? India और rest of the world की economies के बीच में. Now, note. See here is the concept of outsourcing. Although in the previous year in the subject business studies you have discussed the concept of outsourcing, but again we are going to discuss it. It refers to a system of hiring business services from the outside the world. क्या है? बिजनेस सर्विसेज को हायर करना. कहाँ से? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से. इट इज़ नोन एज आउटसोर्सिंग. दीज सर्विसेज इंक्लूड, कुछ सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से, जैसे कॉल सेंटर हो गया, transportation, clinical advice and teaching, etc. These are the some common services included under the concept of outsourcing. Now see further, India is emerging as an important destination for the outsourcing, पर्टिकुलरली BPO. अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो जो इंडियन इकोनॉमी है, इट इज़ जस्ट इमर्जिंग एज अ न्यू डेस्टिनेशन और द इमर्जिंग एज अ very favorable destination for the outsourcing, specifically BPO. And what is the BPO? Business process outsourcing. They have to see the second point. It is because अब अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर हम लोग बात करें इंडिया एज अ डेस्टिनेशन ऑफ BPO इज इमर्जिंग, सो देयर आर टू रीज़न. द वेरी फर्स्ट रीज़न इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन इंडिया. अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो लेबर है वो बहुत चीप अमाउंट में अवेलेबल होता है. एंड द सेकेंड वन, रिवॉल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ IT इंडस्ट्री. अगर हम लोग अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे जो IT सेक्टर है उसने एक बहुत अच्छा ट्रिमेंडस इंक्रीमेंट लिया है. नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द पॉलिसी स्ट्रैटेजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी में अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी पॉलिसीज़ अडॉप्ट हुई हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. द वेरी फर्स्ट इज़ इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. Dear students, if we talk about the earlier conditions, that is before 1991, so there was very restrictions, a lot of restrictions were there in the context of foreign investment. But now after 1991 policies, these restrictions have been changed. See over here, equity limit of foreign capital investment has been raised from 40%. इनिशियली आप सिर्फ कितना इन्वेस्ट कर सकते थे फॉरेन कैपिटल के फॉर्म में? ओनली 40% आप इंक्रीज इन्वेस्ट कर सकते थे. नाउ इट हैज़ बीन चेंज्ड और नाउ इट रेंजेस बिटवीन 51 to 100%. 51% से कुछ सर्टेन सेक्टर्स में इवन आप 100% तक का भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या कर सकते हैं? अलाउ कर सकते हैं.
सी फर्दर, इन 47 प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़, 47 ऐसी प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें कि गवर्नमेंट ने 100% का FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अलाउड किया है विदाउट एनी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. See further, however, Foreign Exchange Management Act, that is the FEMA, has been enforced. क्या करने के लिए? इन चीज़ों को एक क्रोनोलॉजी में लुकआउट करने के लिए FEMA को गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करा. सेकेंड पॉइंट, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी. Now, to achieve the objective of globalization, partial convertibility of Indian rupees has been allowed for the following transaction. इंडियन रुपी को पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी के फॉर्म में लाके क्या कर दिया? चेंज कर दिया. अब वो बेसिकली किस चीज़ के लिए? सी द फर्स्ट वन, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए. सेकेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके इंटरेस्ट और डिविडेंड को पे आउट करने के लिए. एंड द नेक्स्ट वन, रिमिटेंसेस टू मीट द फैमिली एक्सपेंसेस. अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कोई पर्टिकुलर पर्सन वर्क कर रहा है तो अपनी फैमिली के एक्सपेंसेस के लिए जो अमाउंट पे कर रहा है, दैट इज़ द रिमिटेंसेस टू मीट द फैमिली एक्सपेंसेस. इन 3 एलिमेंट्स के लिए जो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी गवर्नमेंट ने अलाउ करी. नाउ व्हाई इट इज सेड एज द पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी? देखिए, इट इज़ कॉल्ड पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी बिकॉज इट डज नॉट कवर द कैपिटल ट्रांजेक्शन. ये सब रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स हैं या फिर जिनको हम लोग बोलते हैं रिकरिंग ट्रांजेक्शन्स हैं, लेकिन कोई भी कैपिटल ट्रांजेक्शन पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी में इंक्लूड नहीं हुआ. नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी. If we talk about the trade policy, then initially it was of the shorter period, but after the policy of 1991, the time period has been stretched. जो टाइम पीरियड था उसको क्या कर दिया? और लॉन्गर ड्यूरेशन का किया, इम्प्लाइंग दैट इट इज़ अ लिबरल पॉलिसी. क्या करने के लिए? पॉलिसी को और फर्दर लिबरल करने के लिए. अंडर दिस पॉलिसी ऑल रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स ऑन फॉरेन ट्रेड हैव बीन रिमूव्ड. फॉरेन ट्रेड पे जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे, जितने भी कंट्रोल्स थे, उन्हें क्या कर दिया? रिमूव कर दिया. नाउ ओपन कॉम्पिटिशन इज एनकरेज्ड. ओपन कॉम्पिटिशन का मतलब कि whosoever will be competent either from the domestic industry or economy or from rest of the world economy will survive in the market. Next, reduction in tariffs. इन ऑर्डर टू इनकरेज कॉम्पिटिटिवनेस को इनकरेज करने के लिए जितने भी टैरिफ बैरियर्स से उनको क्या कर दिया? विड्रॉ कर लिया. किसने? इंडियन गवर्नमेंट ने. नेक्स्ट, विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस. इनिशियली देयर वर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस इन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंटेक्स्ट, लेकिन 2001 से जितने भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे इम्पोर्ट पे, वो सारे कम्प्लीटली गवर्नमेंट ने क्या कर दिए? रिमूव कर दिए. दिस इज़ इन कन्फर्मिटी विद द इंडियाज़ कमिटमेंट टू WTO. WTO को इंडिया ने कमिटमेंट किया था कि ग्रेजुअली इट विल रिमूव द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, और 2001 में ऐसा हुआ कि सारे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस क्या हो गए? रिमूव हो गए. Now see note, some important points are there that is to be discussed in the context of the topic globalization. The first one is the bilateral trade agreement, as the name is signifying bilateral. So it is a trade agreement that is of one country to another country. तो ऐसा ट्रेड ट्रांजेक्शन या फिर एग्रीमेंट जिसमें 2 नेशंस इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट. बाय का मतलब होता है 2. Thereafter, the next one is a multilateral trade agreement. So these refers to the agreements of one country with many countries of the world. जब एक country rest of the world की different countries से agreement करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं multilateral trade agreement. Thereafter, tariff barriers. जनरली दीज आर थ्रू द इम्पोर्ट ड्यूटी. जो इम्पोर्ट पे चार्जेस इम्पोज होते हैं उनको हम लोग टैरिफ बैरियर्स बोलते हैं. एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स जो कि टैरिफ के फॉर्म में बैरिकेडिंग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि क्या हो गया? कोटा बैरियर्स हो गया, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हो गया. ऑल दीज आर द नॉन टैरिफ बैरियर्स. नाउ सी द नेक्स्ट इन last topic of today's lecture, that is a WTO, World Trade Organization. So see over here, WTO commenced its operation on January 1st 1995 under the Marrakesh Agreement signed by 123 country. कब स्टार्ट हुआ? 1 जनवरी 1995 में, सॉरी. एंड कितनी मेंबर कंट्रीज थी जिन्होंने साइन किया उस टाइम पे? 123. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ WTO? द फर्स्ट वन, WTO is expected to promote the free trade by eliminating tariff and non-tariff barriers among the member country. जो फ्री ट्रेड है उसे प्रमोट करेगा कैसे? टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिमूव करके.
Second, it intends to promote the competition and free access to the global markets by the member country. ये क्या करेगा, इस बात को इंटेंट करेगा टू प्रमोट, कि क्या हो, जो कंपटीशन है वो प्रमोट हो और जो फ्री एक्सेस, दैट मीन्स कि कोई भी नेशन किसी भी नेशन को ट्रेड के लिए क्या कर सके, एक्सेस कर सके एमंग द मेंबर कंट्रीज. Thereafter, next, it is expected to facilitate bilateral as well as multilateral agreements. Bilateral agreement को भी promote करता है, साथ के साथ जो आपके multilateral agreements हैं, that means among the different nations, उसको भी promote करता है. Next, it is to ensure optimum utilization of world resources by enlarging the size of global market. Optimum utilization of global resources, world resources कैसे, पूरे world को एक big market में convert करके. And see the note, as of 2016 the WTO has 164 members. अगर हम at present बात करें तो WTO के कितने members हैं, 164 members हैं. WTO के starting में कितने थे, 123 थे. Now see impact of WTO on the Indian economy. Indian economy में WTO का impact क्या पड़ा, तो on a broad sense we are going to discuss. The first, our share in international trade is expected to increase in the future. WTO से जब हम लोगों ने बाइंड अप किया, जब हम उसके मेंबर बने, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है उसका जो स्केल है वो, बट ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा. सेकेंड पॉइंट, इंडिया इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट्स ऑफ गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल. इंडिया का जो अपना एक्सपोर्ट्स था किसका, गारमेंट और टेक्सटाइल का, वो फर्दर क्या हुआ, और ज़्यादा एनलार्ज हुआ, और ज़्यादा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. थर्ड देखिए, इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंक्रीज ओवर द टाइम. और इंडिया के जो प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट्स थे वो भी ओवर द टाइम क्या हुए, इंक्रीज हुए. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पॉलिसी स्ट्रैटेजीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, WTO and the purpose and the impact of WTO. In next lecture we are going to have a complete analysis, that means pros and cons of the LPG policy. This is all about today. God bless you all. Lots of love.